Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117, and do remember to prefix 011 before the phone numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है। हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. At the stock markets, Sensex gains 111 points, Nifty moves up 22 points, but rupee weakens 13 paisa against the dollar. Rating agency ICRA forecasts 2% uptake in economic growth in the fourth quarter of the last fiscal. And Brent crude oil futures climb $1.25 to trade at $67.69 a barrel. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 111 अंक बढ़ा, निफ्टी 22 अंकों की वृद्धि में रहा, लेकिन रुपए में डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट आई। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान दिया कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर 2% दर्ज होगी और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $1.25 बढ़कर $67.69 प्रति बैरल पर था। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की वृद्धि से 111 अंक बढ़कर 50,652 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की ही वृद्धि से 22 अंक बढ़कर 15,198 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से भी बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.9% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 111 points or 0.2% to close at 50,652 today. The Nifty at the National Stock Exchange moved up 22 points or 0.2% to end at 15,198. The broader market outperformed the Sensex with the BSE Mid-Cap Index climbing 0.9% and the small cap index rising 0.7%. Market breadth on the BSE was positive with 5 gainer for every 3 losers. Among the sectoral indices on the BSE, the power index was the biggest gainer, advancing 1.9%. The oil and gas index added 1.7%. The realty and the utilities indices climbed 1.5% each. Capital goods index rose 1.4%. Industrial index gained 1%. BankX moved up 0.9%. The finance index added 0.7% and the healthcare and the consumer discretionaries rose 0.5% each. Among the declining indices, the telecom index dropped 0.9% and the metal index 0.6%. हमारे आज के पहले कॉलर दिल्ली से मिस्टर आर.एस. दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर दहिया, अपना सवाल पूछिए। मैं मार्केट मंत्रा की टीम को नमस्कार। जी नमस्कार।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि यू सी द सेंसेक्स इज अराउंड 50,000 एंड निफ्टी इंडेक्स इज more than 15,000 and most of the industries are closed because of corona lockdowns and Sensex is supposed to be reflecting the GDP in the same proportion. Now what are the great big expectations when the government is not getting any revenue, industry is closed? How come the people who are players in the market are having such big hopes? 50,000 index is very high valuation. And on the second side, we are crying that GDP is going down. How the two things are, you see, matching with each other? जी हरवीर जी Actually, definitely there is no direct relation between the two, whether this side or that side. Actually, market gets affected due to many reasons, and if there is inflow in equity, investors are investing into the market, so definitely market will go upward side. And it is not only just our domestic investors and institutions. Foreign investors are also investing in the Indian market or many other emerging markets also. So, and the return in the market in the last few months have attracted the investors to the market because other avenues of the investment, opportunity like real estate or bullion or even fixed deposits are not giving the return which can compete with the market in the last almost 1 year. So in that case, despite the second wave of pandemic, market stabilizing or increasing in the last 2 seasons, it has gone up. But at the same time, we should see that some global data is also showing a positive side. US data is very strong and Europe also. These things also makes an impact on the market. That's why market is going up. And definitely market cap is now in terms of comparing to GDP is at a very high level. The prices in PE is also very high. So, but it is attracting the investors. Market is going up. It depends on the quality investors category also. Those who are very conservative, they don't go in such a market, and those who have some appetite to take the risk, it goes to the market. Harveer ji, you just mentioned the fact that one of the factors which is buoying up the Indian markets is the investors, the inflows. And in fact, today the Commerce Ministry has come out with some figures. It says that India attracted the highest ever total FDI inflow of $81.72 billion during 2020-21 financial year. And this is 10% higher compared to 2019-20. So what do you... I mean, as our listener was just asking, given the COVID situation, what do you attribute it to, the highest ever inflow, FDI inflow? So see, in this $81 billion of inflow, which was 10% higher from the previous year, the second highest share of this inflow went to the equity market. Yes, true. That's true. So, and it shows that the global investors or funds or institutions or basically pension funds, they're interested in the Indian market. They may be interested anywhere from there. They can get good returns. So that's why. And even this investment due to some PLI scheme and all, attracted a lot of investment into software and computer hardware. So it means when global economy is fighting this pandemic and shrink, even in that scenario, we have received a higher size of FDI in Indian economy. So that also reflects that there are opportunities for investors, not just in stock market, but in other areas of our economy also. आइए चलते हैं अब अगले कॉलर के पास। रिंकी है बलरामपुर से। रिंकी जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। और आपके साथ सहयोगी सरिया मैम कोई भी हो तो मेरा नमस्कार पहले स्वीकार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बताइए, अपना सवाल पूछिए।
जी जी बिल्कुल। और एक्सपर्ट मैम कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मान लें हम व्यापार करना चाहते हैं या भी कोई भी या निवेश करना चाहते हैं तो क्या उसकी ये है कि मतलब वो प्रशिक्षण ले तभी कर सकता है या फिर ऐसे ही कर सकता है? ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है? थोड़ा इस पे राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो अलग चीजों पे आप बात करना चाह रही है। एक तो है कि आप कोई कारोबार करना चाहें, कोई व्यवसाय करना चाहें, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जाहिर सी बात है कि आपको जो आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका साइज क्या है, किस तरह से आप चाहेंगे। एक तो यही है कि आप फिक्स डिपॉजिट्स में यूजुअली स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर को और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनको सेफ किया जाता है और डायरेक्ट मार्केट में प्ले करने के बजाय दे मस्ट चूज म्यूचुअल फंड रूट और SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम उस स्कीम में डालते हैं जो आप खरीदते हैं फंड की, और उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट फिर वहां पर जो एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो या वो अपने आधार पर एलोकेट करते हैं कहाँ से रिटर्न ज्यादा आएगा एसेट मैनेजमेंट के लिए जो लोग हैं। तो ये एक रास्ता है। दूसरे, अब जहां तक ट्रेड की बात है या बिजनेस की बात है, डेफिनेटली जब आप किसी सेक्टर में कोई कारोबार करना चाहते हैं आपके पास कुछ नॉलेज का समझ तो होना चाहिए। एक तो होता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स आपको उसके लिए तैयार करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो यू कैन चूज। इट इज बेटर कि थोड़ा आप पहले नॉलेज गेन करें इसी फील्ड में, और उसके बाद क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस शुरू करना चाहेंगे डेफिनेटली उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जो आपकी सारी कमाई का पैसा होगा, और उसमें आप कामयाब हैं उसके लिए आपको बेसिक समझ और उस इंडस्ट्री और सेक्टर के जो डायनेमिक्स हैं उनको समझना बहुत है। और हरी जी, अगर वो लोन लेती हैं तो बिजनेस प्लान भी होना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, बिजनेस प्लान तो जब आप किसी बैंक के पास जाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे डेफिनेटली दे विल आस्क फॉर योर बिजनेस प्लान, और उसी को असेस करने के बाद वो आपको अप्रूव करेंगे कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जी, और अब हमारे साथ दिल्ली से हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक। दीपक, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड दैट ऑफ एनी स्टॉक, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लिकर स्टॉक। पहला आपका क्या सवाल था? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड दैट ऑफ एनी स्टॉक। हरी जी, देखिए, ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप किसी असेट के बारे में उसका वर्थ जानने के लिए पता करेंगे तो आपको एक कैलकुलेटिव सिस्टम ऑफ एक फाइनेंशियल मॉडल है, उसमें आपको जाकर के ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें जो एसेट है उसका जो एग्जैक्टली अभी जो मार्केट प्राइस है उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये और ये लिटिल बिट टेक्निकल थिंग जो कि उस मॉडल के थ्रू आप उसको चेक कर पाते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था। अगले कॉलर को ले लेते हैं। मुंबई से रत्नाकर हैं। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मार्केट तो अभी ऑल टाइम हाई है, जो कि परसों भी 900 पॉइंट से ऊपर था, आज भी ऊपर है। तो ऐसे समय में ऐसे कौन से सेक्टर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और भी पोटेंशियल है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हरी जी, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पूछ रहे? देखिए, अगर ये आज का देखेंगे तो आप उसमें तो बैंकिंग सेक्टर और ऑयल स्टॉक्स ने बेहतर किया है। पीछे मेटल सेक्टर अच्छा कर रहा था लेकिन आज कोई उस तरीके से ज्यादा उसमें नहीं आया। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का असेट में और किस लेवल पे एंटर करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली एक जो अट्रैक्टिव सेक्टर बोलते हैं कि FMCG, बट इधर जो नंबर्स आए हैं FMCG का सेल्स डाउन है, सेल्स ड्रॉप हुआ काफी तेजी से इनका भी ड्यू टू द सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक। बट डेफिनेटली एक चीज मैं देखता हूँ कि
जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो सेक्टर अभी भी अच्छा कर रहा है और उसमें आपका एग्रोकेमिकल्स है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चरल मशीनरी है, क्योंकि वहां पर अभी कोई जो उस सेक्टर का जो वेल्थ जनरेशन का जो सिस्टम है उसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो दोज हु आर देयर एंड वो कंपनीज भी अच्छा कर रही है, इवन शुगर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल और उनको कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा हो गया काफी, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। And we've been joined now by Mukesh from Delhi. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question. जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि मैंने 2018 में एक क्रेडिट कार्ड लिया था, तो मतलब ये कोरोना की वजह से मैं वो 2 साल से कर नहीं पाऊँ, तो उन्होंने 40 पेंडिंग था उसको उन्होंने 1 लाख करीब बना दिया 2 सालों के अंदर भी कोरोना में, और मेरे पास जॉब भी नहीं है और उनके कॉल भी आते रहते हैं और वो हमें धमकी वगैरह देते हैं, मतलब उनकी जो थर्ड पार्टी की कॉल आती है, तो मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? हरवीर जी, वो क्रेडिट कार्ड इन्होंने लिया था और उसका आउटस्टैंडिंग जी कह रहे 2 साल से वो पे नहीं कर पाए हैं और इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से एक तो पिछले साल कुछ रिलीफ दिया गया था क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट को लेकर के, गवर्नमेंट ने बियर किया था बर्डन, लेकिन ये उसके सेट गाइडलाइन है। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया उस वक्त आप देखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो आपके अगेंस्ट जो भी उनके पास लीगल मीजर्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट एंड कॉल और थर्ड पार्टी वो सब तो मेरे ख्याल से लीगल अलाउ नहीं है। तो आपको बैंक के साथ ही बैठ करके सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज उनका पैसा आपके ऊपर है और वो सिर्फ एक प्रॉपर कानूनी तरीके से आपने लिया है, तो देन वो आपको पे तो करना होगा। अगली कॉल लेने से पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। करेंसी बाजार की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले आज 13 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 72 रुपए 96 पैसे दर्ज हुई। चले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर, तो अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला था। मौद्रिक नीति के संभावित रुख के लिए निवेशक अमेरिका की मुद्रास्फीति से जुड़े प्रमुख आंकड़ों के इंतजार में थे। जापान का निकेई सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक प्रत्येक 0.2% की बढ़त में रहे और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% गिरकर बंद हुआ और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी बढ़त का रुख था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था और फ्रांस के कैक में 0.1% की वृद्धि थी। जर्मनी का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद था। Domestic rating agency ICRA has forecast a 2% uptick in growth during the March quarter of the last fiscal. This would mean that the NSO projection of a double-dip contraction is avoided. The agency has placed the full-year contraction at 8.45%. Its chief economist Aditi Nair expects the annualized GDP growth at 2% in March quarter. Harveer ji, good news. Or relatively good news, we can say that ICRA is forecasting now a 2% uptick in the last quarter. How do you view this? Actually, you see, in the last quarter, the economic activities were basically reaching towards the normalcy. So, in that sense, definitely it will have an overall impact on the GDP growth for the last fiscal. But for that, actually, what is the difference and whether it is how much level will go up? Maybe the way we are talking about the double-digit contraction, instead of that, it will be single-digit. But we should wait for NSSO data for that, I think, because there is an expectation of a agency, rating agency, but NSSO data is final in that case. अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ गोपाल नवी मुंबई से। गोपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मार्केट में सिंह को नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा एक ही सवाल है, थोड़ा सवाल बड़ा है और उसका जवाब मेरे को बहुत जरूरी है। मैं सवाल पे काफी दिनों से परेशान हूँ। मेरा ये सवाल है कि 2015 में मेरे माता पिता ने छोटे छोटे अमाउंट में पूरे फैमिली के 2 कंपनियों में फिक्स डिपॉजिट रखी थी, तभी RBI अप्रूव्ड थी। अब वो दोनों कंपनी वाइंड अप हो गई है और 2015 में वाइंड अप हो गई और हम लोग वो लेटर लिखते हैं कि वी कैन नॉट क्रेडिट इंटरेस्ट एंड वी कैन नॉट रिफंड योर अमाउंट क्यों बिकॉज द कोर्ट केस इज गोइंग इन कोर्ट।
ऐसा करके लेटर भेज दिया वो लोग ने। और मालिक लोग तो आराम से गाड़ियों में घूमते हैं, वकील करके छोड़ देते हैं। और फिक्स डिपॉजिट लोग छोटे छोटे बेचारे लोग धक्के खाते हैं इसके कोर्ट के। एक फिक्स डिपॉजिट लिक्विडेशन कोर्ट में अटक गया है और दूसरा एक फिक्स डिपॉजिट एनसीटीएल में अटक गया है। तो ये कहाँ तक जायज है? इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर को ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ताकि एक बार ये इनको कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये तो बड़े बड़े मालिक लोग गाड़ियों में घूमते हैं आराम से, फिक्स डिपॉजिट लोग बेचारे रास्ते पे आ जाते हैं। आरबीआई ऐसे लोगों को अप्रूव क्यों कर दिया है? मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ प्लीज। हरवीर जी, क्या इनके पास विकल्प है? देखिए, ये तो इशू है कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो उसकी ग्रेडिंग होती है कि पहला क्लेम किसका उसके ऊपर बनेगा। तो एक तो लेंडर्स का होता है पहले, जिन्होंने लैंडिंग की है, बैंक्स का, इंस्टीट्यूशन। तो एंड ये अब सिक्योर्ड डिपॉजिट था या अनसिक्योर्ड था, ये देखना पड़ेगा इनको। और दूसरा क्या है कि ये एक काफी बड़ा इशू है कि इस तरीके के मामले लगातार आते हैं। मेरे ख्याल से ही इज राइट दैट आरबीआई शुड लुक इनटू इट। और ये रेगुलेटर का काम है कि इन्वेस्टर जो उसका फेथ है वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बड़ी मेहनत की कमाई है। और उसमें जिस तरीके से लेंडर्स का है कि उनका फर्स्ट क्लेम बनता है, बट जो डिपॉजिटर है, जिसने फिक्स डिपॉजिट किया और जिसने उस कंपनी को चलाने में योगदान दिया, उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज उसका भी लाइफ का बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। और बल्कि उसका इसलिए भी जरूरी क्योंकि उनकी जो इनकम है वो तो एक लिमिटेड ही होती है। और किसी का भी जो सरप्लस है जिसको उसने डिपॉजिट किया, उसको लेकर के उसकी अपनी खुद की फ्यूचर प्लानिंग और अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से ये इसमें तय करना चाहिए सरकार को, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को, एज वेल एज आरबीआई एज ए रेगुलेटर, के ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और इसमें चेंजेस होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी इस तरीके के कई मामले देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ कि किसी के पेरेंट्स ने पैसा लगाया और उन्होंने अपनी काफी बड़ी सेविंग्स दे दिया और बाद में कंपनी, उस वक्त ये कंपनी जो अट्रैक्टिव रेट उस वक्त देती है, तो वहां पर रेगुलेटर को देखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि आपका बिजनेस प्लान को लेकर के जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वो देखता है कि आप इसको फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो कंपनी इस तरीके से कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स लेती है, तो यहाँ पर रेगुलेटर का काम है कि ये डिपॉजिट जिस काम के लिए लिया जा रहा है उसको थॉरोली जो है उसका स्क्रूटनी होना चाहिए, क्योंकि जो भोले वाले इन्वेस्टर्स हैं वो तो नहीं ये सब कर पाएंगे और ना वो एक्सपर्ट्स होते फाइनेंशियल जगलरी के और किसी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और सब करेंगे। सो दैट्स व्हाई दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। मेरा ये मानना। And we have the next caller online from Kolkata, Rahul. Rahul, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Please ask your question. We want to trade in the foreign stock exchange. The company listed in the foreign stock exchange. So how can we proceed? देखिए, तो आप कर सकते हैं, वहाँ पर उसके आरबीआई की गाइडलाइन है और उसके हिसाब से आपको जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना होता है। उसके लिए तो आप उस रूप से कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के अलावा म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है फॉरेन मार्केट्स। बिल्कुल, ये इसीलिए वो फिर उनका जो भी एक तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो सारा के तहत जो नियम तय है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली देयर इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट का। अब गाजियाबाद से गौरव है हमारे अगले कॉलर, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हरवीर जी नमस्ते, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरा सवाल है, क्या ये जो सरकारी खरीद का जो हमारे यहाँ सिस्टम है ये दुनिया में कहीं और चलता है? किसी और देश में ऐसा मॉडल है कि सरकार जो खरीदती मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसे किसी और देश में खरीदा जाता है कि आपको जानकारी है? क्या दूसरा सवाल है सर, ये गेहूं की कीमतें या इनकी कीमतें हमारे यहाँ और एज कम्पेयर टू इंटरनेशनली अमेरिका या रशिया या कनाडा में कि यहाँ कहाँ तक मैच करती हैं? अगर बहुत नीचे हमारी कीमत है तो सरकार खरीद के बाहर एक्सपोर्ट कर दे क्योंकि फायदा होगा। और ऐसा सिस्टम ये एमएसपी का किसी और देश में है या नहीं है? थैंक यू। देखिए, प्राइस सपोर्ट सिस्टम तो है और कुछ देश डेफिशिएंसी प्राइस देते हैं उस प्राइस सपोर्ट सिस्टम में। चाइना में लंबे समय तक रहा है और ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स यूरोप के देशों में भी है और अमेरिका में भी है, बट वो डायरेक्ट क्योंकि उस तरह की सरकारी एजेंसी बहुत जगह उस तरह नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया में नोबल ग्रेन एक कंपनी थी जो कि
कोऑपरेटिव थी फार्मर्स की, वो लोग करते थे, बट आई थिंक नाउ दैट इज एक्वायर्ड बाई सम बिग एमएनसी। तो ये इस तरह से है, बट सपोर्ट डेफिनेटली मिलता है। और जहां तक प्राइस का है, हमारा जो सीएसीपी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से एमएसपी तय करता है, बिकॉज तो ये है कि जो जिस तरह का हमारा यूनिक पीडीएस है, क्योंकि हमारा उसको चैनलाइज करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है जो हम खरीदते हैं। दूसरे वो रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। दूसरे ये है कि जो प्राइसेस है, अब जैसे आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट पे जो दाम है वीट का, वो हमारे एमएसपी से ज्यादा हो गया है और हमें बेसिकली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वीट और राइस दोनों है। राइस ज्यादा है, वीट भी शुरू हो गया है, उसका भी काफी क्वांटिटी गई है। तो तभी हम कर पा रहे हैं जब हमें कॉम्पिटिटिव हम ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइसेस ज्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, जो जैसे आपने कहा कि जो सीआईएस कंट्रीज हैं या पुराना रशिया जो यूक्रेन जो है और बाकी जगह, वहां पर मार्केट जो है वही तय करता है इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस कैसे होंगे एक्सपोर्ट मार्केट। एंड अब हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं ग्वालियर से मोहन। मोहन, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए प्लीज। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। मेरा सवाल है कि अभी जो ये इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है, ये इंक्रीज होने का कब तक और क्या सिचुएशन आपकी नजर में बनती है? धन्यवाद। देखिए, बात सही है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉलिसी रेट भी एकदम बहुत ही लो लेवल पर स्टॉक है रिकॉर्ड, लेकिन इधर जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, जो होलसेल इन्फ्लेशन में डबल डिजिट के ऊपर चला गया, लेटेस्ट जो डाटा आया है, और आरबीआई विल लुक इनटू इट। तो इसमें एक चीज तो तय है कि जो पॉलिसी रेट है वो कम होने की तो स्थिति अभी नहीं है। हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट का मूवमेंट अपवर्ड हो जाए, लेकिन उसकी संभावना भी कम ही है क्योंकि ग्रोथ को भी बढ़ावा देना चाहती है आरबीआई। ब्रीफली जी, एक्चुअली दोनों चीजें हैं कि आपको लिक्विडिटी भी देखनी है और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी करना है जी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो फिर दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर ग्रोथ एंड इकोनॉमी। Moving on with some more news, global crude oil prices rose today as a potential snag emerged in reviving the 2015 Iran nuclear deal that could add more oil supply, while Goldman Sachs said the case for high prices remains intact even with increased Iran exports. So Brent crude oil futures for July climbed $1.25 to $67.69 a barrel. US crude oil for July advanced $1.50 at $64.73 a barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 95 रुपए महंगा होकर 48,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी 154 रुपए की तेजी दर्ज करती हुई 70,998 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ $1,882 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $27.67 प्रति आउंस पर थी। हरवीर जी, ब्रीफली आप क्या कहेंगे, मॉनसून के जो अच्छे फोरकास्ट आ रहे हैं और एग्रीकल्चरल आउटपुट का जो एक उत्साहजनक आउटलुक दिखाई दे रहा है, वो शायद इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है? हाँ, देखिए, हमारा जो एक्चुअली इन्फ्लेशन है वो फूड ग्रेन की वजह से नहीं है ज्यादा, फूड आइटम्स की। इसमें एक तो जो एनर्जी रिसोर्स हमारा है, जो ऑयल है, उसकी वजह से ज्यादा है। और अभी हम लोग पल्सेस का थोड़ा प्राइस है और एडिबल ऑयल प्राइसेस ज्यादा हुआ है। ये चीजों को कंट्रोल करने में नॉर्मल मानसून होगा तो हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पल्सेस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और फार्मर्स ज्यादा ग्रो करेंगे क्योंकि अभी मार्केट में अच्छे दाम मिल रहे हैं और ये उसको कंट्रोल करने में मदद कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवीर जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Mr. Singh. And moving on, before we close, a reminder of the headlines. At the stock exchange, Sensex gains 111 points, Nifty moves up 22 points, but rupee weakens 13 paisa against the dollar. Rating agency ICRA forecast 2% uptick in economic growth in the fourth quarter of the last fiscal, and Brent crude oil futures climbed $1.25 to trade at $67.69 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Anubha Rodgi and Sonu Sood saying bye-bye. Do join us tomorrow at 6:30 p.m. for another edition of Market Mantra. Till then, namaskar. Namaskar. Market Mantra.